students, welcome to OL Experts. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So we had begun with the chapter which was dealing with microorganisms. Microorganisms which can be both our friend also as well as foe also. So we have already discussed how microorganisms can be very useful, very beneficial for us. बहुत सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग वगैरह में, या फिर एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी यूजफुल होते हैं. Today we are going to go ahead and talk about the other aspect of microorganisms, and that is them causing disease or them causing us harm. So let us begin. तो सबसे पहले अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली जब हमारे दिमाग में भी ऐसे माइक्रोब्स की बात आती है ना, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हाउ दे कैन कॉज सो मेनी डिजीजेस, and that is actually true also. There are so many different varieties of microorganisms which can be extremely harmful to plants also, animals also and humans as well. They can cause so many kinds of diseases जिसमें से कुछ actually fatal भी हो सकती हैं, death भी cause कर सकती हैं of the respective plant, animal or even the humans. And such disease causing microbes or microorganisms are actually called as pathogens. तो पैथोजेंस किसी भी टाइप के माइक्रोब्स हो सकते हैं. दे कैन बी द बैक्टीरिया, दे कैन बी वायरसेस, दे कैन इवन बी द फंगसेस. इन फैक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एक्चुअली कॉज spoilage of our food, of our clothes, of leather, especially in the rainy season, right? So these are also the harmful effects of microorganisms. Now let us first focus on the various disease which a microorganism can cause or different types of microorganisms can cause. तो अगर हम लोग बात करें about the category of diseases, कैसे टाइप की होती हैं diseases, there can be two kinds, communicable या फिर non-communicable. Communicable diseases जो होती हैं, as the name suggests, ये transmissible होती हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर हो सकती हैं. जाहिर सी बात है, कोई ना कोई ऐसा मीडियम चाहिए होता है ट्रांसफ़र के लिए. सो जनरली ये एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती हैं, या फिर वाटर या फिर फूड वगैरह के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं, या इवन एक इन्फेक्टेड पर्सन अगर कांटेक्ट में आता है एक हेल्दी पर्सन के, देन ऑल्सो देर आर सर्टन डिजीजेज विच कैन बी ट्रांसमिटेड. तो वो सारी की सारी डिजीजेज आती हैं कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में. Like for example, there is cholera, there is common cold, chicken pox, tuberculosis, all of these are communicable diseases. Whereas जब हम non-communicable diseases की बात करते हैं, ये ऐसी diseases होती हैं जो infected person से healthy person तक pass on नहीं होती. Then there are the non-communicable diseases. Non-communicable diseases को actually non-transferable diseases भी बोलते हैं, क्योंकि ये infected person से किसी healthy person को transfer नहीं हो सकती हैं. Now you must have heard also about certain non-communicable diseases जैसे कि lung cancer हो गया, या paralysis है अगर किसी को, तो it cannot be transferred from one person to another. या फिर किसी को अगर कोई nutritional deficiency है, तो that also cannot be transferred from one person to another. So all of these diseases, they categorize non-communicable diseases which cannot be transferred from one person to the other person. Then let us look at certain modes of transmission of diseases. जो transmissible diseases होती हैं या फिर जो communicable diseases होती हैं, वो एक person से दूसरे person को कैसे transfer हो सकती हैं, कौन से mode से transfer हो सकती हैं. Let us look into that. So first of all, it can be transferred through air. तो एक्चुअली होता क्या है, काफ़ी बार स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो होती हैं उसमें क्या होता है, व्हेन वी एक्सहेल आउट या फिर अगर हम लोग स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो बहुत सारे जर्म्स या बैक्टीरिया जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर होते हैं, वो एयर पार्टिकल्स में एज सच चले जाते हैं. दे डिसिपेट इनटू द एयर, राइट, एंड उसके थ्रू किसी हेल्दी पर्सन के अंदर जा सकते हैं, किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं. सो देर इज द ट्रांसमिशन थ्रू एयर. देन फूड ऑल्सो एंड वाटर ऑल्सो, अगर इनके दोनों में ही कंटेमिनेशन हो, right, then also the pathogens, they can be transferred. कोई पैथोजन अगर फूड में प्रेजेंट है, और स्पेशली फूड के केस में क्या होता है ना, बहुत सारे कैरियर्स होते हैं जो कि पैथोजेंस को लेकर आते हैं और फूड पर डाल देते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरियर्स इज हाउस फ्लाई. तुमने देखा भी होगा, स्पेशली अगर मिठाई वाले के यहाँ जाते हैं ना, तो देखा होगा कि भिन भिनाते रहते हैं फूड के आसपास, मिठाइयों के आसपास, राइट. और जब उस पर बैठते हैं तो बहुत सारे पैथोजेंस, बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो उनकी बॉडी में लगे होते हैं,
वो फूड में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ऐसे टाइप के फूड को बोलते हैं कंटैमिनेटेड फूड। अब इसे अगर कोई हेल्दी पर्सन खाता है तो वो पैथोजन उसकी बॉडी में चले जाते हैं एंड दे स्टार्ट कॉजिंग डिजीजेस। सिमिलरली फॉर वाटर ऑल्सो, स्पेशली कुछ एरियाज होते हैं ना जहाँ पे क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग नहीं मिलता है। इन सिचुएशंस जब फ्लड्स आते हैं तब भी जो वाटर होता है वो काफ़ी डर्टी हो गया होता है, उस टाइम पे इनफैक्ट बहुत सारे वाटरबॉर्न डिजीजेस फैलने लगते हैं। देन ऑफ कोर्स बाय कांटेक्ट बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारे बैक्टीरिया एज सच हाथ वाथ में आ सकते हैं अगर हम लोगों ने इसी गंदे हाथों से कोई यूटेंसिल छुआ या फिर कोई डोर का नॉब छुआ, एंड देन सम हेल्दी पर्सन ऑल्सो टचेज इट एंड बाय मिस्टेक वो किसी तरह से उनके माउथ से एंटर कर गया या किसी और बॉडी के स्क्रैच से या कहीं से भी it is able to enter into the body, then also it will cause diseases, right? And then there are obviously the vectors ऐसे organisms होते हैं जैसे mosquitoes हो गए, ticks हो गए, fleas हो गए, ये भी as such pathogens को carry करते हैं या तो अपने बॉडी के अंदर या फिर अपने बॉडी के बाहर, and then transfer कर देते हैं from one person to another person, and obviously they will also cause diseases. Then let us now focus on carriers also. So there are certain insects और little organisms जो कि carriers की तरह act करते हैं diseases के. Now what do we mean by carrier? जैसे vehicle होती है ना, it carries a person from one place to another, वैसे ही carriers pathogenic vehicles होती हैं, पैथोजेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं। सो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई का। इनफैक्ट हाउस फ्लाई डोमिनेटिंग कैरियर होती है ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डिजीजेस। सो ये एक्चुअली फूड वगैरह पे तो फीड करती है, लेकिन उसके अलावा गार्बेज पे अक्सर देखते हैं, गार्बेज जहाँ पे भी होता है या फिर एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा जहाँ होता है वहाँ पे भी मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं ना, तो जब वो उस गंदी जगह पे या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे बैठती हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ से पिकअप कर लेती हैं, बहुत सारे पैथोजेंस वहाँ से पिकअप कर लेती हैं। इनकी बॉडी में बहुत सारे हेयर्स होते हैं, स्टिकी होती है सॉर्ट ऑफ, सो ये सारे पैथोजेंस इनकी बॉडी में चिपक जाते हैं। अब जब ये जाके फूड पे बैठती हैं तो वही पैथोजेंस उस फूड पे ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड दैट इज हाउ वो फूड जब हेल्दी पर्सन कंज्यूम करता है, दैट इज हाउ पैथोजेंस उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, एंड एज सच द हाउस फ्लाई एक्टेड एज अ कैरियर for that pathogen and transferred it from one place to another, or rather one person to another person. Another example is that of female Anopheles mosquito. Mosquito भी actually काफ़ी common है as a carrier. बहुत सारी diseases होती है, जैसे डेंगी हो गया, उसका जो कैरियर होता है वो भी एक मस्कीटो होता है, एडीज मस्कीटो, वो डेंगी का वेक्टर होता है, कैरियर होता है। देन इवन फॉर येलो फीवर, राइट। सो ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं। एनोफिलीज जो होता है मलेरिया का कैरियर होता है, मलेरिया का जो पैथोजन होता है प्लाज्मोडियम टू बी स्पेसिफिक, एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है, उसको कैरी करता है एनोफिलीज। तो किसी इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड को जब चूसता है तो उसमें प्लाज्मोडियम के कुछ फॉर्म्स आ जाते हैं, और जब जाकर हेल्दी पर्सन का एज सच ब्लड सक करता है तो वो बेसिकली पहले अपना सलाइवा पोर आउट करता है, उसके बाद ब्लड सक कर पाता है। तो वो जो सलाइवा पोर आउट करता है ना, उसी में सारे पैथोजेंस होते हैं मलेरिया के, और वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू अ हेल्दी पर्सन, right? So this is how certain animals, certain organisms, certain insects also can act as carriers of various diseases. Now let us focus on certain diseases which occur in humans, plants as well as animals. So first of all, talking about diseases in humans, तो कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस की अगर बात करें तो फर्स्ट हो गई ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसी डिजीज है जिसकी एक्चुअली वैक्सीन भी है, तो पार्टली प्रिवेंटिव है, राइट। हाउएवर अगर ट्यूबरक्यूलोसिस होता है तो जनरली सिम्टम्स एज सच बहुत दिखाई नहीं देते हैं। जब सिम्टम्स अपीयर करते हैं तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कफ। अगर किसी को बहुत खांसी आ रही है और दवा लेने से भी नहीं ठीक हो रही है तो ज़रूर ट्यूबरक्यूलोसिस का टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा नाइट चिल्स होते हैं, फीवर वगैरह होता है, सो दोज आर सर्टन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस। ये ट्रांसमिट होता है थ्रू एयर, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सो थ्रू एयर इसके जो स्पोर्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके थ्रू ये ट्रांसफर हो सकता है, राइट। देन देयर इज कॉलेरा। कॉलेरा इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर। इसमें क्या होता है, डोमिनेटली जो सिम्टम्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू डायरिया, दे आर रिलेटेड टू लूज स्टूल्स, ठीक है, डिहाइड्रेशन होना, ये सब कॉलेरा में देखा जाता है।
टाइफॉइड ऑल्सो इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर. इनफैक्ट टाइफॉइड को एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं. एंट्रिक इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइनल फीवर भी बोल सकते हैं. बेसिकली ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, एडवर्सली इम्पैक्ट करता है. अगेन इसके भी सिम्टम्स सेम होते हैं. डायरिया होता है, वॉमिटिंग वगैरह होती है, डिहाइड्रेशन होता है. देयर कैन ऑल्सो बी हेड एक, बॉडी एक्स, फीवर्स वगैरह हो सकते हैं, राइट. लूज स्टूल्स पास ऑन होते हैं. सो कॉलरा एंड टाइफॉइड इनफैक्ट आर बैक्टीरियल डिजीजेज जो ऐसी जगहों पे बहुत पाया जाता है जहाँ पर सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है. वहाँ पे ऐसे टाइप का कंटेमिनेशन ज़्यादा होता है. देन दी अदर डिजीजेज इन ह्यूमन्स आर द वायरल डिजीजेज जो कि वायरसेस से कॉज होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मीजल्स हो गए, चिकन पॉक्स हो गया या पोलियो हो गया. मीजल्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड चिकन पॉक्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. लेकिन चिकन पॉक्स के केस में क्या होता है ना, जो स्कैब्स बनते हैं या अल्सर्स बनते हैं उनके कॉन्टैक्ट में आने से भी ट्रांसमिशन हो सकता है, राइट. मीजल्स और चिकन पॉक्स में डिफरेंस कैसे आज सच देख सकते हैं. देखो मीजल्स में क्या होता है ना, फीवर चढ़ता है और उसके बाद रैशेज होते हैं, और रैश भी नॉन इची होते हैं, खुजली नहीं होती है और फ्लैट होते हैं, राइट, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो. जबकि चिकन पॉक्स में क्या होता है, चिकन पॉक्स में रैश भी आता है और फीवर भी ऑलमोस्ट साथ में आता है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, राइट. एंड इसके केस में जो रैशेज होते हैं ना वो अल्टीमेटली अल्सर्स बन जाते हैं, मतलब उनमें पस भर जाता है और इसके थ्रू भी एक्चुअली ट्रांसफ़र हो सकता है. मीजल्स में इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा और सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे रनी नोज हो गया, नौशिया हो गया या फिर सोर थ्रोट हो गया. ये सब सिम्टम्स भी एज सच मीजल्स में आकर करते हैं, जबकि चिकन पॉक्स में ये सारे सिम्टम्स नहीं देखे जाते. देन देर इज पोलियो. पोलियो के बारे में इनफैक्ट यू मस्ट हैव हर्ड ऑल्सो. 2 बूंद जिंदगी के इज सपोज टू बी द टैग लाइन ऑफ पोलियो वैक्सीन, राइट. तो पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती है जिसके थ्रू पोलियो को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन अगर किसी को पोलियो हो जाता है एंड ही ट्रांसमिट्स इलनेस, सिकनेस, तो जनरली बहुत ड्रास्टिक सिम्टम्स होते हैं इसके, सच एज पैरालिसिस या फिर इट कैन इवन बी फेटल समटाइम्स, राइट. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियो वैक्सीन का लिया जाना. Then other kinds of diseases which are again viral diseases are hepatitis A. Hepatitis A virus basically ये disease cause करता है और ये disease भी transmit हो सकती है through contaminated water. Hepatitis A में क्या होता है, basically liver का dysfunctional होना इसका एक symptom है. इसके केस में जैसे joints वगैरह में बहुत pain रहेगा, फटीग होगा, फीवर होगा. इनफैक्ट जॉन्डिस इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए, क्योंकि लिवर डिस्फंक्शन हो रहा है ना, तो येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं जो एज सच एक्सप्रेस होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ येलोइंग ऑफ द स्किन, ऑफ द नेल्स एंड द आईज, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. देन अनदर कॉमन डिजीज, वायरल डिजीज इज डेंगी. अच्छा, इसमें मत कंफ्यूज होना, कैरियर एडीज मस्कीटो होता है, लेकिन जो पैथोजन जो कि ये डिजीज कॉज करता है दैट इज अ वायरस, राइट. सो डेंगी में क्या होता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एडीज मस्कीटो और इसमें भी एज सच फीवर होता है, हेडेक होता है, चिल्स भी देखे जाते हैं. कभी कभी ना शॉक की वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी होने लगती है जो कि काफ़ी सीरियस सिम्टम होता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. देन देर आर द प्रोटोजोअन डिजीजेस सच एज मलेरिया. मलेरिया में एक्चुअली रिकर करता है, फीवर बार बार होता है, राइट, और चिल्स होते हैं बहुत ज़्यादा. और ये एक्चुअली सिम्टम इसलिए होता है क्योंकि एक टॉक्सिन रिलीज होता है इन द बॉडी प्रोटोजोअन की एक्टिविटी की वजह से, और उस पर्टिकुलर टॉक्सिन की वजह से बार बार फीवर और चिल्स आते हैं, राइट. कॉजल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है यहाँ पर, प्रोटोजोआ है बाय द नेम ऑफ प्लाज्मोडियम. सो यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑल्सो, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया. लेकिन जब हम कैरियर की बात करते हैं या ट्रांसमिशन कैसे होता है इस पर्टिकुलर डिजीज का, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी ये ट्रांसमिशन हो रहा है हम फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल एनोफिलीस की बात कर रहे हैं, मेल से ट्रांसमिट नहीं होता है. इनफैक्ट जो मेल्स होते हैं ना एनोफिलीस मस्कीटो के, दे फीड ऑन फ्रूट, राइट. सो ऑब्वियसली वो जब ब्लड सकिंग होते ही नहीं है तो ट्रांसमिशन भी नहीं कॉज करते हैं. वेयर एज जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल एनोफिलीस होते हैं, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए एज सच ब्लड सक करना पड़ता है, न्यूट्रिशन के लिए ब्लड सकिंग होते हैं, इसीलिए फीमेल एनोफिलीस टू बी वेरी स्पेसिफिक ट्रांसमिट्स द प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. Then let us talk about certain diseases in animals also.
एनिमल्स स्पेशली कैटल वगैरह में बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो कॉज हो जाती हैं, एंड इनफैक्ट जो फार्म एनिमल्स होते हैं ना वो क्योंकि एक साथ रहते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है डिजीज़ एक से दूसरे को बहुत जल्दी स्प्रेड करती हैं और पूरे कैटल का एज सच लॉस हो सकता है in most cases. So one of the very serious diseases anthrax. Anthrax में इनफैक्ट पता भी नहीं चलता है हुआ क्या है और सडन डेथ हो जाती है कैटल की. It is caused by a bacterium called Bacillus anthracis. तो नाम भी as such anthrax का इसी के बैक्टीरिया के थ्रू ही आया है. और इस डिजीज में जनरली ये देखा जाता है कि माउथ, नोज या फिर एनस के पास से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है. हाउएवर हर कैटल में, हर अफेक्टेड एनिमल में ये सिम्टम बहुत देखा नहीं गया है, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है. अगेन इट इज़ अ सडन डिजीज, फीवर चढ़ता है 2-4 दिन और फिर सडन डेथ हो जाती है. तो जनरली बहुत ज़्यादा कैटल लॉसेस की रीज़न होती है ये डिजीज एंथ्रैक्स. देन देर इज फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल. ये भी कैटल में होती है, शीप्स, डियर्स वगैरह में भी होती है. इसमें क्या होता है कि स्मैकिंग लिप्स हो जाते हैं और जो फीट होती हैं वो काफ़ी टेंडर हो जाती हैं, सोर हो जाती हैं, टेम्परेचर रेज हो जाता है बॉडी का, राइट, अमंगस्ट अदर सिम्टम्स. ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं इन द फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल. दिस डिजीज इज इन फैक्ट कॉज्ड बाय अ वायरस. सबसे छोटा वायरस होता है, द स्मॉलेस्ट ऑफ द वायरसेस कॉज foot and mouth disease in cattle. Then let us talk about certain diseases in plants also. So there are bacterial diseases such as citrus canker. Citrus actually citrus fruit से related होता है, जैसे मौसम्बी हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन्स वगैरह हो गए, आंवला हो गया. तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स को अटैक करता है. सिम्टम्स एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ब्राउन स्पॉट्स टाइप के अपीयर करते हैं ऑन द लीव्स, ऑन द फ्रूट. They are often oily or water soaked in appearance. So as such थोड़े sticky से appear करते हैं. Causal microorganism is obviously a bacteria. और mode of transmission कैसा होता है? Actually ये भी देखा गया है कि citrus canker का जो बैक्टीरिया होता है, causal बैक्टीरिया होता है, वो भी बहुत जल्दी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसमिट हो जाता है, and that is because of transmission through air. Right, so that is why it multiplies very rapidly and it can be transmitted from one plant to another plant. Then fungal diseases की अगर बात करें तो जैसे as you can see here in the picture, this is a picture of rusting wheat, right? तो wheat की जो leaves होती हैं उनमें dusty से reddish brown से spots आने लगते हैं, as you can see here on the surface of the leaf. बाकी स्टेम वगैरह में भी ऐसे डस्टी से रेडिश ब्राउन स्पॉट्स, जैसे कील व्हील में रस्ट लग जाता है ना, तो वैसे ही ये अपीयर करता है, वैसे ही कलर टाइप का होता है और वैसे ही अपीयरेंस होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रस्ट ऑफ व्हीट. सो द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस इज अ फंगस एंड ट्रांसमिशन अगेन यहाँ पर भी एयर के थ्रू हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड सीड्स के थ्रू हो सकता है. देन देर आर द वायरल डिजीजेस. एक वायरल डिजीज जो कॉमन है इज येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी. ओकरा में ये देखा जाता है, उसकी जो लीव्स होती हैं ना वो बिल्कुल येलो हो जाती हैं बिकॉज जो भी वेन्स होती हैं वो सारी की सारी येलो हो जाती हैं. सो एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, वेन्स पूरी लीफ में फैली हुई हैं और सारी की सारी वेन्स एज सच येलो हो गई हैं. तो जो एरिया होता है लीफ का वो ज़्यादातर येलो अपीयर करने लगता है. एंड द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस इज अगेन अ वायरस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एन इंसेक्ट. सो इंसेक्ट कैरी करता है वायरसेस को फ्रॉम वन, and in this case the mode of transmission is an insect. Now let us look at certain preventive measures जो कि हमें carry on करने चाहिए या हमें follow करने चाहिए in order to prevent the occurrence of diseases. For example, अगर कोई infected होता है और transmissible होती है disease, तो ज़रूरी है कि infected person isolated रहे, राइट, एक रूम में रहे और दूसरों से थोड़ा दूर रहे till the time that the disease can be transmitted. और जब भी काफ या स्नीज आती है तो हमें अपना हैंकरचिफ यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग ड्रॉपलेट्स के थ्रू एयर में इन्फेक्शन को ना फैलने दें. देन ऑब्वियसली कीपिंग आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज सराउंडिंग्स क्लीन. जैसे कि हमने देखा भी कितने सारे कैरियर्स ऐसे होते हैं जो कि गंदी एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा, गार्बेज वगैरह पे उड़ते रहते हैं एंड फिर वहाँ से ट्रांसमिट करते हैं बहुत सारे पैथोजेंस ऑन आवर फूड एक्सेट्रा. सो ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें एंड वी गेट रिड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कैरियर्स.
Then we should never let garbage collect in our neighborhood. This is another aspect of cleaning our environment, keeping it clean so that carriers as such हमें infect ना कर पाए. Then other measures are timely vaccination against diseases. In fact, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका तो पूरा चार्ट प्रिपेयर होता है ऑफ वेरियस वैक्सीनेशंस दैट दे नीड टू हैव, सो उसको फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन मस्कीटोज जो होते हैं ना, दे आर ऑल्सो लेजिट कैरियर्स ऑफ वेरियस डिजीजेस. तो मस्कीटोज को प्रिवेंट करना फ्रॉम ब्रीडिंग, राइट. इसको कैसे कर सकते हैं? जनरली जो मस्कीटोज होते हैं ना, वो अपने एग्स ऐसा स्टैग्नेंट वाटर में लेकर, उनके लार्वा स्टैग्नेंट वाटर में ही हैच कर पाते हैं, मैच्योर हो पाते हैं, राइट. तो अगर हम स्टैग्नेंट वाटर कहीं पे कलेक्ट ना होने दें, स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, स्थिर पानी, राइट. तो अगर हम अपने सराउंडिंग्स में, अपनी कॉलोनी वगैरह में स्टैग्नेंट वाटर जमा ना होने दें, तो हम लोग काफ़ी हद तक मस्कीटोज के लार्वा और उनकी ब्रीडिंग को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. Then let us talk about another aspect of harmful microorganisms and that is food poisoning. So अक्सर क्या होता है ना, हमारा फूड जो होता है वो कंटेमिनेटेड होता है बाय सर्टेन माइक्रोब्स, या फिर वो कुछ टॉक्सिन्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं. और अगर कोई पर्सन इसी फूड को खा लेता है, इनटेक कर लेता है, देन ही माइट सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग. जैसे कि एक पॉइजन होता है ना, हम लोगों के लिए टॉक्सिक होता है, वैसे ही ये फूड ऑल्सो इट बिकम्स अ पॉइजन फॉर अ हेल्दी पर्सन. ही बिकम्स इन्फेक्टेड और जनरली माइल्ड सिम्टम्स ऐसे देखे जाते हैं कि स्टमक एक हो गया या फिर फीवर हो गया, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग. इट कैन इवन कॉज डेथ. With this we come to the end of this particular lecture. I hope अच्छे से सब समझ में आ गया है how microorganisms can be our friends also as well as our foe. In the next class we are going to talk about certain methods, certain preservation methods we can take in order to prevent food poisoning. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.